So, welcome all. Before coming to this, let us have what we described earlier. Yes, please. Here, you are now very well known about this system. This system we have seen several times. It is a automatic load frequency control and voltage regulator control loops of synchronous generator. Here we have studied this in very much detail in last 8 to 9 lecture. In the last 8 to 9 lecture, we have studied this much, that it is a primary automatic load frequency control, it is a secondary automatic load frequency control, or we can say here we control the load and frequency. If the load increases, how the frequency is being controlled. This side it is a voltage control, voltage and excitation control. Here you see, we have seen the voltage is set here, it is measured here, then it is rectified, converted into DC, and it is compared whether it is 1 per unit or not. If it is not, then excitation is controlled. This, now we will study this portion in very much detail, and for studying this, there is one complete chapter, that is the chapter number 10. So we will study this in very much detail here, and chapter number 10 is the excitation control. Detail of this is here. Yes, please. You see, this is about the excitation control. We know that our intention is to maintain the voltage of all the transmission line within a specific limit. That is the transmission line, or at all the buses. Voltage at all the buses should be within the range, that is plus minus 5%. It should not go beyond plus minus 5%. And we know, and who affects the voltage? We know the active power. We have so far seen the active power affects the frequency, and reactive power mainly affects the voltage. And just to understand that, first of all, let us have the power output from the generator is given by EB by X and delta. This is the formula you have studied several times, where E is the voltage, terminal voltage of the generator. This is the output voltage at the terminal, or you can say this is the excitation voltage. This is the output voltage of the terminal. From where we are drawing the power, it is the reactance, synchronous reactance plus transmission line reactance. It is the power angle between the bus to the excitation voltage. So it is the EB by X and delta is the power output from the generator, and power output from the load. This power output from the generator is nothing but power taken by the load, and power taken by the load at the bus is given by VI cos phi. V is the voltage at the bus. So here V is the voltage at the bus, current taken from the bus, and power factor phi is the power factor angle, which is the angle between voltage and current. So this is the power taken from the bus. Power transfer from the generator is given by this formula, and since both are same, EB by X and delta, so we can say from here, if you compare this, we can say that since this power is constant, power output, if we say output power is constant, output power taken is constant, so from here we can say this E sin delta is constant here. From here you can say E sin delta is constant. Now the basic equivalent circuit of the synchronous generator. This is the equivalent circuit of the synchronous generator. This is the excitation current. Here, when the current flowing into this, voltage is generated, is given by the excitation voltage, terminal voltage. The voltage which we receive at the terminal, it is the synchronous reactance XS. Or if the transmission line is connected, then synchronous reactance plus transmission line total reactance.
and delta is the power angle between E and V. Load is connected here. So this EF is equal to V plus JIXS. This we have studied this equation several times in the electrical machines in your BTech classes. EF, this voltage, excitation voltage, is equal to V terminal voltage plus JIXS. IA is the current flowing here. XS is this reactance. So now if we draw the phasor diagram of this, if you draw the phasor diagram of this, you know here you can see the phasor diagram. This is the voltage V, and if this is a current, voltage at the terminal is V, current drawing from the terminal, current drawing from the bus is, they say it is a IA1. If this is the current IA1, so IA axis, what will be the IA axis? E is nothing but V plus IA axis. So this is a V and this is a I, and JIA axis means perpendicular to I. It is a I perpendicular to I. There is a IA axis. Okay. This is a V, this is a I axis, so this is a V terminal voltage. This is a excitation voltage. Is this phasor diagram clear or not? Jagveer? Hello? Yes, sir. This is the phasor diagram. Yes. And any question in this? This is a V, terminal voltage V, and this is a IA axis. So V plus IA axis, J plus V plus J IA axis is equal to E. This is a, from here to here, it is a E. Now we have seen EF sin delta is constant. Just now we have seen E sin delta. This is a E, and angle between E and V. This is a E. This phasor is E. This is a V. So angle between E and V, this angle is delta, power angle delta. So E sin delta, E sin delta is constant. Just now we have seen E sin delta. If we consider active power output from the generator is constant, then E sin delta is constant. If it is a E sin delta means here, this is a E sin delta. From here to here, it will be E sin delta. This is constant. It means if the voltage, if the active power is constant, then this EF will move on this. It is a phasor. It is a locus of E. E इस पर move करेगा excitation voltage. And we have just seen VI cos phi is constant. Active power is constant. It means VI cos phi is constant. So I, this is the angle between V and I, phi. Angle between V voltage and current. Power factor angle is power factor angle. So I cos phi. So it means this is constant. I cos phi. What is this? This is I cos phi. From here to here, it is I cos phi. Since it is I, so it is I cos phi. So it means I cos phi is constant. इसका मतलब क्या हुआ? I will move on this locus. Current will move on this locus, and excitation voltage will move on this locus if we consider active power is constant. Okay. Now when the active power is constant, now you see current become in place of lagging. If the load is such that it drawing the leading current, if the load is taking as a leading current, say this is a leading, it is a current lagging current. Normally current is lagging of the load, but say for example, this is a normal current, unity power factor. This is a leading current. If the load is drawing unity power factor current, so it is a I. If this is a I, so what will be IA axis? If this is a IA axis will be perpendicular to this. So perpendicular to this is the IA axis. If this is a voltage, terminal voltage, this is a IA axis. So what is this? This is the excitation voltage now. If it is a leading, if the load is such that current, it is drawing leading current, then perpendicular to this, the IA axis will be now this. IA axis will be this. If this is IA axis, so voltage V plus J IA axis is equal to EF. So what is the meaning of this? This is the excitation voltage more than the normal. You can say this is a normal excitation when the unity power factor is there. When it is a lagging current, this is a over excitation. When it is a leading current, it is under excitation. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, if the load is drawing lagging power factor current, then we have to supply we have to make the over excitation.
हमें अगर करंट हमारी लैगिंग है, अगर लोड ऐसा है कि करंट लैगिंग है, देन वी हैव टू ओवर एक्साइट द सिस्टम, जनरेटर को ओवर एक्साइट करना पड़ेगा। इफ करंट इज यूनिटी पावर फैक्टर, then we have to normal excite the generator, and if it is a leading current, then we have to under excite the under excite, we have to make the under excitation. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? To make the voltage constant, to make the voltage constant for constant active power depending upon the nature of the load. If it is over excited, depending upon the nature of the load, whether it is a poor lagging power factor, leading power factor, or normal power factor, we have to over excite, under excite, and normal excite the synchronous generator. Is this point clear? ये पॉइंट समझ में आ गया कि हमें सिंक्रोनस जनरेटर को अगर डिपेंडिंग अपॉन द लोड, अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द लोड हमें सिस्टम को ओवर एक्साइट, अंडर एक्साइट और नॉर्मल एक्साइट करना पड़ेगा। मतलब अगर लैगिंग करंट है तो ओवर एक्साइट करना पड़ेगा, लीडिंग करंट है तो अंडर एक्साइट करना पड़ेगा, और नॉर्मल करंट है तो यूनिटी पावर फैक्टर करंट है तो नॉर्मल एक्साइटेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वोल्टेज को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो बिकॉज लोड हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोड चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कंटिन्यूअसली एक्साइटेशन को कंट्रोल करना है। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, कौन बोल रहा है? मितेश सर। अच्छा, हाँ, कार्तिकेय इज प्रेजेंट और नॉट? प्रेजेंट सर। हाँ, कार्तिकेय आप बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। कि अगर हमें सिस्टम को वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो लोड पे डिपेंडिंग अपॉन द लोड, अगर लोड हमारा पुअर पावर फैक्टर है तो ओवर एक्साइट करना पड़ेगा, यूनिटी पावर फैक्टर है नॉर्मल एक्साइटेशन पे रखना पड़ेगा, और लीडिंग है तो अंडर एक्साइटेशन पे रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, हाँ कार्तिकेय अगेन द क्वेश्चन इज, अगर हमने ऐसा नहीं किया, मतलब एक्साइटेशन को करंट लैगिंग है, पुअर पावर फैक्टर है, और हमने ओवर एक्साइट नहीं किया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बताओ। ओवर एक्साइट करना, अंडर एक्साइट करना, नॉर्मल एक्साइटेशन पे रखना, ये एज ए पावर इंजीनियर हमारी ड्यूटी है। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? यस बताओ। हाँ कार्तिकेय, जगवीर, संतराम। यस सर। हाँ बताओ। yes, अगर हमने सपोज ये लैगिंग करंट यही है, ठीक है, करंट लैगिंग है तो आई एक्सेस यही होगा, आई एक्सेस यही होगा, और इसको हमने ओवर एक्साइट यहां तक नहीं ले गए, इसको कम अंडर एक्साइटेशन, इसको कम रहेगा, यहां तक रहने दिया तो क्या होगा? एक्साइटेशन हमारे हाथ में था। एक्साइटेशन मतलब फील्ड करंट, जनरेटर में जो फील्ड करंट दे रहे हैं उससे एक्साइटेशन पैदा हो रहा है, तो फील्ड करंट हमने ऐसे दी, ये एक्साइटेशन तो इतना हुआ, और लोड पे करंट लैगिंग था तो आई एक्सेस ये हुआ, तो फिर क्या होगा? नॉर्मली क्या होना चाहिए? लैगिंग के केस में हमें ओवर एक्साइट करना चाहिए था, लेकिन हमने फील्ड करंट नहीं बढ़ाई, ओवर एक्साइट नहीं किया, तो होगा क्या फिर हैपन? या संतराम बताओ। मितेश, यस मितेश आप बता सकते हैं? दीक्षा सर, फील्ड करंट नहीं होगा तो एक्साइटेशन नहीं Yes, बनेगा sir. सर। नहीं, फील्ड करंट ऐसा नहीं कह रहा फील्ड करंट नहीं है, फील्ड करंट है, लेकिन कम फील्ड करंट होने की वजह से एक्साइटेशन इतना है, ओवर एक्साइटेशन नहीं है, एक्साइटेशन अंडर एक्साइटेशन है, कम एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन तो हमने इतना किया, अंडर कम किया, और करंट ये जो लोड करंट था वो लैगिंग था, तो आई एक्सेस ये था, होना क्या चाहिए था? ये आई एक्सेस के लिए हमारा वोल्टेज ये होना चाहिए था, ओवर एक्साइटेशन, लेकिन करंट तो इतना ही है, लेकिन ये वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज ये वाला है। क्या करें? यस सर, अंडर एक्साइटेशन को
नहीं, एक, हाँ एक बोलिए, संतराम आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? यस, हाँ संतराम बताओ, सर मैं ये कह सर रहा कौन हूँ बोल रहा? क्या? हाँ बोलिए, दीक्षा आप बताओ। हेलो दीपिका आप बताओ। सर मैं ये कहता कि रिएक्टिव पावर फ्लो को कंट्रोल अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, देखिए करंट लैगिंग था ये, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर ई मैग्नीट्यूड के बराबर तो आई एक्सेस है, वोल्टेज यही है, एक्साइटेशन वोल्टेज इतना ही किया, तो ई माइनस आई एक्सेस तो वोल्टेज था, तो ई और आई एक्सेस यहाँ हो गया, आई एक्सेस ये यहाँ पे ये सेम आई एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं आई एक्सेस, तो ये ई आई एक्सेस, तो वोल्टेज अब यहाँ तक रहेगा, ये टर्मिनल वोल्टेज ये ना हो गया, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर हमने लैगिंग करंट के लिए ओवर एक्साइट नहीं किया तो हम वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे, वोल्टेज हमारा कम हो यहाँ पहुंच जाएगा, कम हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट अलाउड। टर्मिनल वोल्टेज हमारा सभी बसेस का टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, या एक विद इन स्पेसिफिक रेंज 1 पर यूनिट के अराउंड ही होना चाहिए, तो दैट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसे ओवर एक्साइट करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज द, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लोअर डाउन द वोल्टेज। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लोड हमें ओवर एक्साइट, नॉर्मल एक्साइट और एक्साइटेशन को कंटिन्यूसली कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज द पर्पज। तो एंड हाउ टू कंट्रोल द एक्साइटेशन कंटिन्यूसली, विद द बाय मॉनिटरिंग द लोड को मॉनिटर करते हुए हमें एक्साइटेशन कंटिन्यूसली कंट्रोल करना है। यही हमारे एज ए पावर इंजीनियर हमारा रोल है। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमें एक्साइटेशन सिस्टम, एवीआर सिस्टम को समझना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन और एक्साइटर, देखिए एक्साइटर का काम क्या होता है, एक्साइटर का काम क्या होता है, टू गिव द फील्ड करंट, और रेगुलेटर का काम क्या होता है, टू मेक द वेरिएशन इन दैट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज को रेगुलेट भी करेगा और एक्साइटेशन कंट्रोल करेगा। सो नाउ दिस एक्साइटेशन सिस्टम, नाउ लेट अस हैव द टू अंडरस्टैंड द एक्साइटेशन सिस्टम। अब देखिए एक्साइटेशन हमारे, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम। डीसी एक्साइटेशन होता है, एसी एक्साइटेशन होता है, ब्रूसलेस एक्साइटेशन होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम है। एसी में स्लिप रिंग टाइप ऑफ एक्साइटेशन और ब्रूसलेस टाइप ऑफ एक्साइटेशन। डीसी में भी रोटेटिंग सेल्फ एक्साइटेड एक्साइटर एंड देखिए जिससे आपका कंपाउंड एक्साइटेशन, डीसी मशीन में आपने क्या देखा, शंट एक्साइटेशन, देन कंपाउंड एक्साइटेशन, then various type of excitation is there, so the same you can observe here. So first of all we will study the self excitation. Self excitation देखिए ये जनरेटर है, this is your generator, okay, generator, so it is giving the AC power here, this power is used here as in the load। ये हमारा पावर कहाँ जा रहा है, हमारा ग्रिड में जा रहा है, 3 फेज जनरेटर है, it is going to the grid and we can measure the voltage here with the help of potential transformer। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हमने वोल्टेज एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, सॉरी हमने वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को वोल्टेज लेवल डाउन किया, मेजर किया, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी हियर, एंड ये वोल्टेज को यहाँ डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज, वोल्टेज हमारा 1 पर यूनिट है या नहीं है,
हमारा वोल्टेज यहाँ 1 पर यूनिट होना चाहिए. If it is 1 per unit, then no problem. If it is not 1 per unit, then this operating coil, this will come into action. और यहाँ के रेजिस्टेंस क्या है? What is this? This is a DC generator. DC generator मतलब DC generator, the shaft of both is same. Mechanically दोनों एक ही shaft पे connected है. तो and when this DC generator is giving the DC current to this, इसको DC करंट मिल रहा है. DC जनरेटर इज गिविंग द DC करंट टू दिस. और ये कितना वोल्टेज कितना करंट देगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा यहाँ का वोल्टेज कितना है. DC जनरेटर का वोल्टेज किस बात पे डिपेंड करेगा? व्हाट इज द वोल्टेज फार्मूला? V इक्वल टू K phi ओमेगा. DC जनरेटर में आउटपुट जो वोल्टेज होता है दैट इज गिवन बाय E इक्वल टू K phi ओमेगा. तो K phi ओमेगा मींस फ्लक्स पे डिपेंड करेगा. ये फ्लक्स ये इसका एक्साइटेशन है, इसका फ्लक्स फील्ड. तो ये since the field is connected with the DC generator itself, that's why it is called the self excited. ये अपने आप से एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेपरेट एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड. इट इज ए सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर. इसी वोल्टेज से इसको एक्साइटेशन मिलेगा और इस फील्ड करंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. E इक्वल टू K phi ओमेगा. जितना आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसी के प्रोपोर्शनेट यहाँ इसमें फील्ड करंट जाएगी. तो ये फील्ड करंट जाएगी. नाउ अब here this rheostat is connected in this circuit. You see in this circuit this rheostat is connected. So if the resistance changes here, what will happen here in this? यहाँ वोल्टेज सपोज इसका टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू K phi ओमेगा है. वोल्टेज V माइनस IARA इसमें करंट होगा डिवाइडेड. V माइनस IARA इज द नेट वोल्टेज एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंगली देयर विल बी करंट. ये इसमें करंट होगा. तो अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो ये करंट कम हो जाएगी. ओके, रेजिस्टेंस को कम किया तो करंट बढ़ जाएगी. तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज, अगर इसको वोल्टेज को बढ़ाना है, इसके वोल्टेज को बढ़ाना है, तो वोल्टेज बढ़ाना मतलब क्या? E इक्वल टू K phi ओमेगा. तो आपको फाई बनाना पड़ेगा. फाई बनाने के लिए क्या है? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या? ये करंट कम करनी पड़ेगी. अगर आपने करंट बढ़ानी पड़ेगी. करंट बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा. अगर आपने इसके रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो ये रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो क्या होगा? करंट इंक्रीज कर जाएगा. करंट इंक्रीज करेगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा. फ्लक्स बढ़ जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा. वोल्टेज बढ़ जाएगा तो इसमें एक्साइटेशन करंट इसके जनरेटर में ज्यादा. ये जनरेटर है. जनरेटर का ये स्टेटर है, ये रोटर पे फील्ड वाइंडिंग है. दिस इज द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द रोटर. ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जनरेटर है. इट इज फील्ड वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर, इट इज द स्टेटर वाइंडिंग. तो ये फील्ड वाइंडिंग की फील्ड करंट बढ़ेगी तो एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ जाएगा. सो नाउ दिस इज द रोल. हियर यू सी, ये हमारा एसी जनरेटर है. टर्मिनल वोल्टेज इट शुड बी 1 per unit. It is measured with the help of potential transformer. It is converted into DC with the help of is rectified. And if it is not 1 per unit, if say for example it is less than 1 per unit, it means we want to increase the voltage. तो हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा. यहाँ से इसके रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो फील्ड करंट बढ़ गई. फील्ड करंट बढ़ गई तो हमारा वोल्टेज बढ़ गया, एक्साइटेशन बढ़ गया. एक्साइटेशन बढ़ने पे ये हमारा आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा. इज दिस क्लियर और नॉट? Is this point clear or not? Yes, Yes, sir. sir. Now, why it is called the rotating self-excited exciter? Rotating means ये रोटेट कर रहा है. एक्साइटर है, ये रोटेटिंग, ये एक्साइटेशन सिस्टम है. ये एक्साइटर है ना, ये जनरेटर है, जनरेटर का रोटर है, ये रोटेटिंग टाइप है. एक तो होता है और सेल्फ एक्साइटेड है. इसका जो एक्साइट ये फील्ड करंट है इसका, ये फील्ड करंट कहाँ है? ये भी इसके अंदर है, इसका फील्ड वाइंडिंग है. ये सिंक्रोनस, ये पूरा डीसी जनरेटर है. इसका जो फील्ड वाइंडिंग है और ये जनरेटर रोटर है वो. तो दिस इज द डीसी में आपने देखा है. डीसी में क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग आउटसाइड होता है, रोटर इनसाइड होता है. तो ये रोटर रोटेट कर रहा है, ब्रूश विद द हेल्प ऑफ द ब्रूसेस. ये डीसी मशीन है. विद द हेल्प ऑफ द ब्रूसेस एंड कम्यूटेटर वी टेक द डीसी करंट आउट. ये एक्साइटेशन बाहर हो गया, फिक्स हो गया. ये रोटर रोटेट कर रहा है. तो ये रोटर रोटेट कर रहा है, ये रोटर इससे कनेक्टेड है, ये भी रोटेट कर रहा है. बोथ आर रोटेटिंग. एंड अब देखिए नाउ
So that's why it is called the rotating self-excited exciter. Rotating means ये रोटर रोटेट कर रहा है और सेल्फ एक्साइटेड है, इसी से ही इसका एक्साइटेशन मिल रहा है. So I think you understand the working of this. Now question is, there are some drawback of this. देखिए, the normally the size of the generators are very big. जो हमारा एसी जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, जनरेटिंग स्टेशन पे इनका क्या साइज होता है नॉर्मली, किस साइज के होंगे? जनरेटिंग स्टेशन पे जो जनरेटर होते हैं वो नॉर्मली किस साइज के होंगे? व्हाट डू एक्सपेक्ट? पानीपत थर्मल स्टेशन पे जो जनरेटर है उनका क्या साइज है? दीपिका, कैन यू टेल मी? दीक्षा, बता सकते हैं आप? Are you listening me or not? Are you available, present or not? Yes. हाँ, दीपिका, are you listening? सभी म्यूट चल रहे हैं. दीक्षा, हाँ दीक्षा बोलिए. पानीपत थर्मल स्टेशन पे जनरेटर का साइज क्या है? ओके, हाँ दीक्षा, कैन यू टेल मी? माइक नॉट वर्किंग. ओके, तो एनीवे, रोबिन ठाकुर, आप बता सकते हैं? रोबिन ठाकुर. नो. रजत यादव. यस सर. हाँ, पानीपत थर्मल स्टेशन पे जो जनरेटर है उनके क्या साइज है? नहीं मालूम? कैसे पावर इंजीनियर बनोगे आप? सक्षम? 200 मेगावाट के स्ट्रोक होता है सर. हाँ, 250 मेगावाट ईच. देयर आर फोर सिस्टम, 250 मेगावाट ईच. तो सपोज करिए अगर ये 250 मेगावाट का होता, 250 मेगावाट, और एक्साइटेशन सिस्टम, ये देखिए आउटपुट लोड, आउटपुट तो 250 मेगावाट है. एंड इफ वी कंसीडर 1% एक्साइटेशन इज रिक्वायर्ड. एक्साइटेशन में जो पावर चाहिए, अगर हमने एज्यूम किया 1%, तो यहाँ एक्साइटेशन में इसमें कितना फील्ड करंट, कितना पावर चाहिए? 1% का मतलब, और 1% से कम भी मान लें आप, 0.4% मान लिया, तो 250 मेगावाट. सर 450 मेगावाट है. पार्डन सर 450 मेगावाट है. क्या चीज? कैपेसिटी सर. हाँ, कहिए क्या वहाँ? देयर आर 4 टोटल, नहीं, 4 जनरेटर्स आर देयर. तो लेट अस हैव 1 जनरेटर. हाँ, टोटल तो सर 450 है ना? नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द पावर ऑफ 1 जनरेटर. यहाँ एक ही जनरेटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना. ओके सर. 110 है सर, 110 कह रहा हूँ. 110, 250 ऐसे. लेट अस हैव, एनीवे, लेट अस हैव 250 मेगावाट. तो 250 मेगावाट का अगर एक्साइट इज 250 मेगावाट इज द लोड, इट कैन गिव द लोड इक्विवेलेंट टू दैट. तो एक्साइटेशन हमने माना, इसमें एक्साइटेशन फील्ड चाहिए. एक्साइटेशन मान लिए 1% भी नहीं, 0.4%. 0.4% मतलब यहाँ पे 1 मेगावाट एक्साइट पावर चाहिए, 1 मेगावाट. एंड अगर ये डीसी जनरेटर है एंड सपोज इट इज वर्किंग एट 1 kV, तो व्हाट विल बी द करंट? ये करंट कितना होगा? 1 kV, 1 मेगावाट 1 kV कितना हो जाएगा? 1000 एम्पियर करंट. तो इसमें 1000 एम्पियर करंट जा रहा होगा मिनिमम. 1000 एम्पियर करंट अगर इसमें जा रहा है तो इसके कम्यूटेटर ऑफ बुरसिस का क्या हाल होगा? तो देयर विल बी लॉट ऑफ एनर्जी लॉस हियर, स्पार्किंग विल बी देयर. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम. दीज आर द ड्रॉबैक of DC excitation system and you can say self excited type of system. देखिए सेल्फ एक्साइटेड में हमने क्या बताया? 1000 एम्पियर करंट. अगर सेपरेटली एक्साइटेड होता तो फिर उसका धीमे धीमे
पायलट एक्साइटेशन उसकी वैल्यू कम हो जाती, बट एंड इन केस ऑफ AC it can be further reduced, that we will take later. But drawback is in case of DC excitation, lot of sparking in the commutator is there, lot of energy loss is there, lot of maintenance is required. These are the drawback of rotating self excited type of generators. So is this clear? इसकी वर्किंग क्लियर हो गई सभी को या नहीं? यस सर। सर हाँ, कौन बोल रहा है? किसने कहा? मितेश? यस, हु इज स्पीकिंग? यस सर। हाँ, कौन, किसने कहा ये वर्किंग क्लियर है? संतराम। हाँ बोलिए। संतराम सर। यस सर। संतराम, अच्छा संतराम ही बताइए, इफ इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, ये तो मैंने अभी बताया नहीं, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डैम्पिंग ट्रांसफार्मर? देखिए शायद करंट को this comes when there is a DC current. Now you see when there is a DC current into this, इसमें अगर DC current, it is a DC system. When there is a DC current into this, then there is a no. अगर यहाँ DC current है, तो what is the role of this? ट्रांसफार्मर का काम कब होता है? When there is a AC. When there is a DC, ये यहाँ देखिए DC जनरेटर है. Then if it is a DC generator, then there is no rate of change of flux here. When there is no rate of change of flux here, no induced EMF and no current here. यहाँ इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिंपल ऐसा करंट फ्लो होता रहेगा. There is no role of the damping transformer. But when during the disturbance, during the change in load, यहाँ load change हुआ and we are changing this resistance change होने से voltage change होगा and it takes some time. इसमें जो टाइम लग रहा है वोल्टेज चेंज होने में, सपोज वोल्टेज चेंज होने में आपको सपोज करिए हाफ सेकंड लगा या 100 मिली सेकंड लगा, तो ड्यूरिंग 100 मिली सेकंड ये वोल्टेज चेंज हो रहा था. तो ड्यूरिंग दैट चेंज देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, हियर इंड्यूस्ड करंट, तो दैट विल कॉज नाउ, then this will come into picture, it will damp out, it is called the damping transformer. ये अपोज करेगा, it will oppose the flux by which it is produced, जो होता है, इसलिए वो चेंज को अपोज करेगा. सो इट विल डैम्प आउट द सिस्टम. जो हमारे इसके अंदर ऑसिलेशंस वगैरह अगर पॉसिबिलिटीज थी उसको ये मिनिमाइज करेगा या डैम्प करेगा. ओके, दिस इज द रोल ऑफ डैम्पिंग ट्रांसफार्मर. आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टैंड, you might have understood about the working of this rotating self excited exciter. Okay, now we will understand the concept and theory of this. इसकी हम modeling, we will do the modeling and then we will analyze the system. हम इसकी मॉडलिंग करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस स्टडी करेंगे, जैसे AGC में किया था ऐसे इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. तो वो तो हमारा सेल्फ एक्साइटेड एक्साइटर का वर्किंग था, स्कीम था जो मैंने एक्सप्लेन किया था. नाउ वी विल डिस्क्राइब द, now we will model it and we will do the performance analysis of this. This is again called as a buck boost excitation system. ये सेम चीज है जनरलाइज फॉर्म में लिखा है. देखिए इस जनरेटर, इट इज ए डीसी एक्साइटर, डीसी जनरेटर. इसमें जो फील्ड करंट जा रहा है, डीसी जनरेटर प्रोड्यूस द फील्ड, दिस फील्ड करंट गोज टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ जनरेटर. ये जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग है, ये जनरेटर है, ये इसका फील्ड वाइंडिंग है, जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग. इस फील्ड वाइंडिंग में करंट ही डीसी जनरेटर भेज रहा है. व्हेन द करंट कम्स इनटू दिस here voltage is produced. This voltage, excitation voltage, we will get here because this is generator, this field winding is on rotor and this rotor is rotating, so EMF is produced on the stator. Stator में voltage produce हुआ, this voltage is going to the grid and this voltage is measured with the help of potential transformer, rectified, it is compared जैसे पहले किया था. एंड कंपैरिजन के बाद उसमें ऑपरेटिंग कॉइल था, एम्पलीफिकेशन के लिए रेजिस्टेंस लगाया था. ये एक एम्पलीफायर है. दिस एम्पलीफायर मे बी मैग्नेटिक एम्पलीफायर, इट मे बी इलेक्ट्रिकल एम्पलीफायर और इट कैन बी
हाइड्रोलिक एनी टाइप ऑफ एम्पलीफायर इट मे बी। तो ये हमारा एम्पलीफायर हो गया। दिस एम्पलीफाई by applying this voltage here, it control this field current. Field current means DC current, करंट ऑफ द डीसी फील्ड वाइंडिंग इट इज कंट्रोलिंग। यहाँ वोल्टेज चेंज होगा तो ये वाली करंट चेंज होगी डीसी, और इसकी करंट चेंज होगी तो ये वोल्टेज चेंज होगा, दिस वोल्टेज चेंज होगा तो मेन एक्साइटेशन करंट चेंज होगा। इट इज द सेम विच वी डिस्क्राइब द अबव इन द अबव स्कीम। अब इसका मॉडलिंग करना है हमें, इसकी डिटेल स्टडी, डिटेल एनालिसिस को समझना है। तो इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? देखिए डीसी सिस्टम में हमने देखिए दिस इज द रेगुलेटर वोल्टेज। ये एम्प्लीफिकेशन के बाद वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, एरर के बाद में ये वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वी आर, इट इज एक्साइटेशन वोल्टेज वी एफ। सो दिस वी आर प्लस वी एफ इज इक्वल टू आई आर एंड डी फाई ओवर डी टी। ये इसमें अगर आप क्या केबीएल लगाएंगे, इस सर्किट में केबीएल लगाएंगे, ये इस सर्किट में हमने इसका मॉडलिंग करना है, इसके अंदर अगर केबीएल लगाएंगे तो ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी। ओके, वी आर प्लस वी एफ इज इक्वल टू आई आर इंटू एन डी फाई ओवर डी टी। ये थोड़ा सा मिसिंग है, इट इज एन डी फाई ओवर डी टी। इज दिस इक्वेशन क्लियर और नॉट? ये इक्वेशन आपको क्लियर हुई या नहीं? या संतराम? यस सर, हो गई सर, केवीएल लगाया सर, इसमें केवीएल लगा दिया है। एंड दिस वीएफ जो हमारा डीसी जनरेटर था, जो एक्साइटर है, डीसी जनरेटर को हम एक्साइटर कर रहे हैं, एक्साइटर था, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? के फाई ओमेगा। के फाई इज द फ्लक्स, फ्लक्स उसके अंदर जो डीसी करंट आ रही है उससे फ्लक्स, ओमेगा उसकी स्पीड, रोटर की स्पीड। ओके, तो ये वी एफ इजिकल टू के फाई ओमेगा। फ्रॉम हियर देखिए फाई ओमेगा क्या है, और यू कैन से इज फाई ओमेगा इजिकल टू वी एफ बाई के, एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो एन फाई इजिकल टू दिस, इसी से ये आ जाएगा। ठीक है, तो एन बाई के ओमेगा को हमने, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स किसमें? इसकी फील्ड वाइंडिंग में, ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स जो डीसी मशीन का फील्ड वाइंडिंग है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है एन डी फाई ओवर डी टी, ये एन डी फाई ओवर डी टी। तो एन फाई इज इक्वल टू, एन का मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गया। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स विच इज कांस्टेंट, के इज ऑलरेडी कांस्टेंट, ओमेगा स्पीड ऑफ स्पीड विच इज कांस्टेंट। ये स्पीड कहां से आ रही है? ये रोटर का, दोनों का रोटर कनेक्टेड है, डीसी मशीन का, डीसी जनरेटर का और हमारा मेन जनरेटर का, तो वो स्पीड कांस्टेंट है। सो एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो दिस कांस्टेंट इज रिटन एज ए टीई, another constant TE, and it is a VF. Okay, so now in place of here N, now VR, VF, IR, N d phi, ये क्या है? N d phi over dt। N d phi over dt का मतलब क्या हुआ? यहाँ N phi की वैल्यू ये है, और N d phi over dt में इसका डॉट, यहाँ ये TE VF डॉट, यहाँ ये फिर फर्दर इट इज मिसिंग VR, VF, IR, TE आ गया, यहाँ पे VF डॉट, VF dot means derivative of VF, यहाँ पे आएगा VF dot. So is this equation clear? सर टी क्या है सर यहाँ पे? Pardon? TE is this constant N by K omega, where N is number of turns in the field winding of the exciter. K is the constant. K क्या होता है? के पता है? डीसी मशीन जब आपने पढ़ा होगा कि इज द जेड पी बाई 2 पाई ए, जेड इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द रोटर, इन द स्टेटर, पी इज द नंबर ऑफ पोल, 2 पाई ए इज द पैरेलल पाथ, जो डीसी मशीन में है। एनीवे वो आपने डीसी मशीन में पढ़ते थे सेकंड ईयर थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल मशीन में, उसका ये कांस्टेंट है ये के। तो दिस एवरीथिंग इज द कांस्टेंट। तो इज दिस इक्वेशन क्लियर और नॉट? ये वाली इक्वेशन क्लियर हो गई? हाँ बताइए। यस सर, यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन है, इट इज टीई, इसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई है वीएफ डॉट। तो अब
अब देखिए इसको इसको अगर सॉल्व करना है, देखिए ये वीएफ है, वीएफ व्हाट इज वीएफ? वीएफ क्या था? डीसी मशीन से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है इसी के अकॉर्डिंगली हमारा मेन मशीन का फील्ड करंट होगा मेन सिंक्रोनस जनरेटर में, क्योंकि वीएफ अगर ज्यादा है, वीएफ इज द वोल्टेज ऑफ द डीसी जनरेटर, वो अगर ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड करंट डालेगा सिंक्रोनस मशीन में। तो ये वीएफ, दिस इज द इक्वेशन, हियर इट इज ए वीएफ, हियर इट इज ए वीएफ डॉट। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वीएफ और वीएफ डॉट ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये आई नहीं होता, इफ फॉर एग्जांपल इफ दिस आई इज नॉट देयर, आई नहीं है, एक ही इक्वेशन है, इफ दिस इज ओनली वन इक्वेशन एंड देयर इज ए वन अननोन, वी आर क्या है? वी आर तो रेगुलेशन वोल्टेज है जो हमें पता है कितना हमने कंट्रोल किया है, एंड वी एफ दिस इज ए कांस्टेंट, तो ये इसमें अननोन, ये वी एफ है, ये वी एफ डॉट है, तो वी कैन सॉल्व इट। एक ही अननोन है ना, इसमें वी एफ हो या वी एफ डॉट हो, मतलब वी एफ इज वन अननोन, तो वन अननोन वन इक्वेशन, वी कैन सॉल्व इट। तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे अगर ये आई नहीं होता तो, लेकिन ये आई होने की वजह से, आई क्या है? आई अगर आप देखो आई क्या है? आई इसके अंदर ये करंट है, ये अगर ये आई नहीं होता तो इक्वेशन सॉल्व हो जाती और हमें पता लग जाता वीएफ की वैल्यू, इस वीएफ की वैल्यू क्या होगी। मॉडलिंग करने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन ये आई नहीं पता है। और आई देखिए, आई, ये जो आई है, आई और इस फाई में क्या रिलेशन है? ये आई और फाई में क्या रिलेशन है? करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स to flux. है, पार्डन Sir, I is directly हेलो, proportional to हाँ, flux होता है ना? क्या होता है? Sir, I हाँ, is दोबारा current बोलिए। directly proportional to flux होता है ना? हाँ, सर, होना चाहिए एक्चुअली जो में। करंट होता आई है वो और फाई direct- के बीच में, यस 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 प्लीज लिसन, आई और फाई के बीच में वीएच कर्व का रिलेशन होता है, वीएच कर्व। आई इज प्रोपोर्शनल टू एच मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड बी मींस फ्लक्स डेंसिटी, फाई इज इक्वल टू वी इनटू ए। तो वीएच कर्व के अकॉर्डिंगली नॉर्मली जो वीएच कर्व होता है हमारा, देखिए वीएच कर्व ऐसा होता है, ये वीएच कर्व, बी इधर, सॉरी एच इधर और बी इधर, ये बी एच कर्व है। तो ये देखिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यहाँ तक प्रोपोर्शनेट है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनेट। एच बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ऐसा नहीं बढ़ता है, एच बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स उस तरह नहीं बढ़ता है। एक एच बढ़ाते जाएंगे, एच मीन्स करंट बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स एक समय के बाद लिमिट हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें आई बढ़ाते हैं यार, एच बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीएच कर्व। ये बीएच कर्व है। तो इस पोर्शन में तो ये नॉर्मल है ये, और आई के प्रोपोर्शनल ये आई एच, और बी के प्रोपोर्शनल फ्लक्स के प्रोपोर्शनल वोल्टेज। तो हमने आई और बी के बीच में रिलेशन लिखा है, आई और बी, एक्साइटेशन वोल्टेज एंड करंट आई। ये अगर ये प्रोपोर्शनेट होता लाइक दिस तो हम सिंपली कह सकते थे आई इज नथिंग बट इट इज ए के वी एफ, आई की जगह के वी एफ, के इज कांस्टेंट, और हमने के वी एफ करने पे वो इक्वेशन में हमारी केवल एक ही अननोन रह जाता वी एफ, और एक अननोन रह जाता, देन वी वर एबल टू सॉल्व इट। लेकिन ये सैचुरेशन होने की वजह से, यहाँ देखिए सैचुरेशन होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली आई प्रोपोर्शनल टू वी एफ नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई वी डिफाइन, हम इस सैचुरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। दिस कितना सैचुरेशन हो रहा है, दिस एडिशनल करंट रिक्वायर्ड। देखिए तो हम इसको क्या करते हैं, अभी डिफाइन एडिशनल करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट बेस करंट। सैचुरेशन ये जो डिफाइन करते हैं, हमें यहाँ एडिशनल करंट इतना वीएफ के लिए, अगर ये देखिए अगर ये प्रोपोर्शनेट होता तो इतने वीएफ के लिए इतना करंट चाहिए थी आईबी, आईबी मतलब के टाइम्स ऑफ वीएफ, लेकिन अब हमें इतनी नहीं चाहिए, सैचुरेशन की वजह से ये एक्स्ट्रा करंट चाहिए।
So this saturation is defined as the additional current required per unit base current. Is this point clear or not? Clear हुआ ये point? So okay. So this is additional. So we define the saturation additional current means I minus IB divided by IB is the S saturation. So we define this I minus IB divided additional current required per unit base current is called the saturation. ये हो गया. ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है कि हमारा BH का कौन सा मटेरियल है. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल, हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, उसके अकॉर्डिंगली इसका हर एक का सैचुरेशन अलग अलग होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइप ऑफ मटेरियल हमारा ये सैचुरेशन होगा. तो फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट I इज द करंट और IB मतलब बेस करंट जितना होना चाहिए था. अगर ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट होता तो I शुड बी इक्वल टू IB. अब हमें 1 प्लस SE इंटू IB. ओके. और IB इज इक्वल टू G टाइम्स VF या K टाइम्स, मैं अभी कह रहा था आपको IB बेस करंट इतना होना चाहिए था, G और K टाइम्स VF. तो इसमें हमने बेस करंट IB की जगह ये लिख दिया, IB की जगह G इंटू VF. ओके. IB की जगह ये लिख दिया. ये जो अब I था वो हमने यहाँ पुट किया VR प्लस VF, यही तो फॉर्मूला था. VR प्लस VF और यहाँ I इंटू R, I की जगह ही पूरा लिखा. ये यहाँ अगेन T VF डॉट, ये फिर वही मिस्टेक चल रहा है, यहाँ VF डॉट और है VF डॉट. अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमारी है, इस इक्वेशन में VR रेगुलेशन, VF और VF डॉट. अब हमारी इक्वेशन में VF डॉट है. इसका मतलब ये हमारी सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक ही अननोन है, दैट इज द VF, और हमें वही VF निकालना है इन टर्म्स ऑफ VR. अगर हम VR इतना रखें तो VF कितना होगा. ओके. तो अब क्या किया हमने, ये VF यहाँ पे भी है, ये VF यहाँ पे भी, ये वाला VF इधर ले गई. तो दिस इज RG VF और ये VF गया तो RG माइनस 1 VF और ये ऐसी RG ऐसी VF ही आ गया, ये T VF डॉट ही आ गया. ओके. इस इक्वेशन का यहाँ VF डॉट है. इस इक्वेशन का सिंस इट इज ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लाप्लास लेना पड़ेगा. अगर ये डिफरेंशियल नहीं होता तो सिंपली सॉल्व हो जाता. ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको लाप्लास लेंगे. तो लाप्लास ऑफ VR का लाप्लास VRS, RG ऐसी VF, VF का लाप्लास VFS और RG माइनस 1 VF इसका लाप्लास ये हो गया. लाप्लास ऑफ TE, यहाँ VF डॉट था, VF डॉट का लाप्लास ऑफ VF डॉट मीन्स S मीन्स लाप्लास ये आ गया. ये तो सैचुरेशन है, इसको ध्यान रखिए. SE इज द सैचुरेशन, S इज द लाप्लास, S इज द लाप्लास सिग्नल, लाप्लास होता है ना SVF. ओके. तो इसका हमारा, इसको ये इक्वेशन आ गई लाप्लास इक्वेशन. इसको फिर RG को हमने KE प्लस 1 एज्यूम कर लिया, ये SE VF डॉट, RG को KE प्लस 1 किया था तो ये KE रह गया, यहाँ KE, यहाँ STE और VF, या ये इक्वेशन आ गई. तो अब ये देखिए, ये जो था KEST, ये KEST से इसको डिवाइड कर दिया पूरे को. ये है ना, ये VFS और KEST यहाँ आया, VRYS KEST, इसमें KEST यही बन गया. और ये ऐसी KE डैश को हमने एक ये जो था, दिस इज कंसिडर्ड एज ए एसी डॉट, क्योंकि सारे कांस्टेंट है. लेट अस हैव इसे एसी डॉट. तो इसको जो किया, नाउ ये देखिए VF बाई VR. अब ये VF और ये VR है, इसको VF बाई KEST और इसको देखिए, ये वाली इक्वेशन है
इस ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी डॉस मान है, ये ऐसी डैश, ये जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। देखिए दिस, ये यहाँ पे वी आर था, वी आर में के ई एस टी का डिवाइड किया, यहाँ वी आर था, के ई एस टी का डिवाइड किया तो ये वी एफ आ रहा है। लेकिन ये वी एफ से ही ये ऐसी डॉट मल्टीप्लाइड बाई दिस, ऐसी डॉट, ये है ही ना, ऐसी डॉट करके आपका नेगेटिव फीडबैक आ गया। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। ये मतलब अगर अब आप ऊपर जाएं, फिर ऊपर जाएंगे तो ये वी आर और बी एफ में रिलेशन कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो वी आर और बी एफ के बीच में जो रिलेशन है वो वहां हमने इस फॉर्म में लिखा है। ये वी आर और बी एफ के बीच में रिलेशन आ गया। नाउ देयर इज ए एम्पलीफायर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब ये एम्पलीफायर है, इसका मॉडलिंग करेंगे हमने वी इज द एरर सिग्नल। इनको कंपेयर करने के बाद में जो एरर सिग्नल आया उसको एम्पलीफाई किया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है या किस टाइप का ये एम्पलीफायर है, मैकेनिकल एम्पलीफायर है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मॉडलिंग, मींस अगर मैकेनिकल एम्पलीफायर है तो ये क्या सिंपली क्या करेगा, इसको एम्पलीफाई करेगा, वी सिग्नल को एम्पलीफाई किया है, बट इट कैन इंट्रोड्यूस सम टाइम डिले। इसमें टाइम डिले इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो टाइम डिले कम होगा, और मैकेनिकल है तो रोस्टेट लगा हुआ है तो टाइम डिले ज्यादा होगा। तो सिंपली एम्पलीफायर जो हमारा है वो इस तरह, वी आर हमने जो एरर सिग्नल है, मतलब यहाँ पे वीई और इधर वी आर, के वन प्लस एस टी, के गेन ऑफ द एम्पलीफायर, टी इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ एम्पलीफायर, और ये हमें इसका लिमिट है। एन एम्पलीफायर हैज द लिमिट। कोई भी एम्पलीफायर किसी भी सिग्नल को इनफाइनाइट एम्पलीफाई नहीं कर सकता, उसकी लिमिट है मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे और मिनिमम कर देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होगा। तो ये हमें यहाँ क्या मिलेगा, वी आर मिलेगा। वीई सिग्नल को वी आर में इस तरह कन्वर्ट करेगा एम्पलीफायर। तो ये हमारा आ गया, ये एम्पलीफायर आ गया, ये वीई सिग्नल हो गया। और ये टर्मिनल वोल्टेज को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था और फिर रेक्टिफाई कर रहा था। तो ये इसका के आर प्लस एस, तो इसमें टाइम डिले रिक्वायर्ड इन मेजरमेंट एंड रेक्टिफाइंग द सिग्नल इज द टी आर। तो ये टाइम डिले हो गया। ये बीडीसी आ गया, बीडीसी को वी रेफरेंस में कंपेयर किया वी। तो दिस इज अवर कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ बूस्ट बक एक्साइटेशन सिस्टम। ये हमारा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है। ओके, तो जो हमारा ये सिस्टम था, अगेन वी कम ऑन दिस, जो हमारा ये सिस्टम था बूस्ट बक एक्साइटेशन सिस्टम, इसका कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम, कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ये आ गया। इससे हम सिस्टम की परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे लोड फ्रीक्वेंसी में किया था, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस या ट्रांजिएंट एनालिसिस, वो सारी एनालिसिस हम कर सकते हैं। वंस वी कन्वर्टेड our schematic diagram, our actual system into the control system, that is the block diagram form, then we can make the performance analysis. इसमें now is there any question into this? अब तक किसी को कुछ पूछना है इसमें से? No, yes. sir. So now I think it is sufficient for today. In the next lecture we will do the performance analysis of this system. Okay, तो सर अटेंडेंस मार्क कर देना सर, मेरा मैं लेट ज्वाइन किया था सर। मैंने भी सर